हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो देख रहे हैं यूएन के मंच पर इंडिया ने रशिया की दोस्ती पर वो बोला जिसे सुनते ही अमेरिका और यूक्रेन ने पकड़ा माथा। ओके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Mr. President, India continues to remain concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in the loss of countless lives and misery, particularly for women, children, and the elderly, with millions becoming homeless and forced to seek shelter in neighboring countries. Reports of attacks on civilians and civilian infrastructure are also deeply concerning. We have consistently advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. In this context, our Prime Minister's statement that this cannot be an era of war bears repetition. Escalation of hostilities and violence is in no one's interest. Instead, an urgent return to the path of dialogue and diplomacy is the way forward. Mr. President, India's approach to the Ukraine conflict will continue to be people-centric. We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. Mr. President, the overall objective of today's resolution, seeking a comprehensive, just, and lasting peace in line with the UN Charter, is understandable. We also note the emphasis on increasing support by member states for diplomatic efforts to achieve peace, as well as support for the Secretary General's efforts to promote a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine. However, reports from the ground portray a complex scenario with the conflict intensifying on several fronts. Today, as the General Assembly marks a year of the Ukrainian conflict, it is important that we ask ourselves a few pertinent questions. Are we anywhere near a possible solution acceptable to both sides? Can any process that does not involve either of the two sides ever lead to a credible and meaningful solution? Has the UN system, and particularly its principal organ, the UN Security Council, based on a 1945 world construct, not been rendered ineffective to address contemporary challenges to global peace and security? Mr. President, India remains steadfastly committed to multilateralism and upholds the principles of the UN Charter. We will always call for dialogue and diplomacy as the only viable way out. While we take note of the stated objectives of today's resolution, given its inherent limitations in reaching our desired goal of securing lasting peace, we are constrained to abstain. Thank you. यार बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया कि भैया हम मानते हैं कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, बहुत जो ह्यूमंस जो वहाँ पे लाइव्स हैं उनके ऊपर अत्याचार टाइप उस टाइप से उन्होंने बोला हो रहे हैं और सिविलियंस के ऊपर बहुत हो रहा है। तो वो सब और मोस्टली हमारा जो सिंपथी है और जो हमारा कंसर्न है वो वुमेन, बच्चे और बूढ़ों के लिए है। वो सब उन्होंने ठीक बोला और ये भी बोला कि भैया बेस्ट वे, बेस्ट सोल्यूशन इज़ डायलॉग्स के साथ ही ये सॉल्व हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि भैया ये जो यूएन है ये इतने पुराना बना हुआ है कि उसको भी एक क्वेश्चन है कि भैया वो भी एक क्वेश्चनेबल है कि उसको भी हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बोला ना उन्होंने, तो मैं बड़ी हैरान थी। तो वो हमारा देखो एजेंडा भी साथ में हम डाल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि भैया इसको रिफॉर्म करो, जो करेक्ट कंट्रीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करो परमानेंट सीट्स के अंदर। और साथ में उन्होंने कहा कि देखो हम सब चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि ये होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल हम भी एग्री करते हैं, पर हम अब्सटेन करते हैं। ऑब्वियसली अब्सटेन ही करेंगे ना, क्या करेंगे, इंडिया क्या करेगा?
उन्होंने कहा कि भैया हम यूक्रेन में हम लोग सपोर्ट भी भेज रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन हमारा एफर्ट भी हो रहा है। उन्होंने यूक्रेन की बात की, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम रशिया को किसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला भैया यूक्रेन को हम हेल्प कर रहे हैं, जो भी हमसे हो रहा है हम करेंगे और हम वॉर के अगेंस्ट है, पर दोनों को मिल बैठ के ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और बात बिल्कुल ठीक है भैया, बिना उसके तुम कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। कोई और बोलेगा, कोई बीच में आएगा तो कोई फर्क पैदा तो है ही नहीं है। दोनों कंट्रीज नहीं बैठ के करने लड़ाइयाँ उन दोनों के बीच में। इसमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि किस चीज पे वोट कर रहे थे, पता नहीं उनके ऊपर कुछ मेरे ख्याल से रशिया के ऊपर कुछ करना होगा ना। एग्जैक्टली में पता नहीं किस चीज पे वोटिंग हो रही थी। कुछ रशिया का मैंने कहीं सुना तो था, कहीं न्यूज में। लास्ट में उन्होंने ये बोला कि हम अब्सटेन कर रहे हैं। इसलिए अब्सटेन कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वॉर जहाँ शुरू हुई थी अभी भी वॉर हो रही है, लोग मर रहे हैं, दोनों पार्टीज आपस में एग्री नहीं कर रही। तो इंडिया ने बेसिकली प्रॉब्लम्स दिखाएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं और हमें लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है, इसलिए हम अब्सटेन कर रहे हैं। और आपके जो भी प्रोसेसेस हैं बड़े पुराने चले आ रहे हैं, पता नहीं कितने काम तो चल नहीं रहा, उसमें कितनी उसकी वैल्यू है हमें पता नहीं है, बट हम तो एब्सटेन कर रहे हैं। हमें इसमें करना ही नहीं है क्योंकि कोई सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बोला। मतलब यही बोला कि इंडिया तो यही कहेगा, देखो एक्चुअली तो उनको बोलना था हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हो, जब हम मेंबर ही नहीं है तो हमसे क्या पूछना। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बोगस है कि कुछ सॉल्व नहीं कर सकती। वो भी सोच रहे हैं दोनों अटके हुए हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, हमें पूछ रहे हो, हम तो नहीं कर रहे इसमें, अब्सटेन अब जाओ। नहीं, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि अगर इंडिया यस भी बोल दे, सारी मेजॉरिटी भी यस बोल दे, कर तो फिर भी तुम कुछ कर तो सकते ही नहीं हो। तो तुम क्या कर लोगे हैं, तुमको तुम्हारे हाथ में फिर भी कुछ नहीं है। सभी लोग बोलेंगे सारे नेशंस अपनी आर्मी भेजेंगे वॉर के लिए, करेगा कोई भी ये नहीं करेगा। और मिस्टर पुतिन ने कहा है कि उनको पता है कि अगर पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट आता है तो न्यूक्लियर। वो तो हमेशा कहते हैं देखो भैया हमारे पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसके बाद हमारा दोस्त जो चाइना, अगर उसके मिला ले तब और भी हमारे ज्यादा हो गए। अगर कोई भी पंगा करता है हम ये छोड़ देंगे न्यूक्लियर वेपन्स, पूरा की पूरी अर्थ मर जाएगी। क्या तुम चाहते हो? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम पे अटैक करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। उसके बाद वो ये कह रहे थे कि जो भी जर्मनी, पोलैंड, जितने भी यूरोपियन यूनियन वाले लोग हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन को, अल्टीमेटली अगर यूक्रेन के पास पावर आती है हमें अटैक करने की, हमारे एरियाज पर अटैक करने की, फिर हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। बाप रे जहां पर भी कोई तकलीफ होती है हम न्यूक्लियर वेपन यूज जब तक हम अटैक करके खुद ही नहीं मना करते, मतलब एंड यही होगा कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमें पूरा यूक्रेन नहीं मिल जाता या हम खुद सोच लें कि अच्छा अब हमें नहीं लड़ना, हम माने, तब तक कुछ और बात मतलब हम यूक्रेन का थोड़ा थोड़ा रास्ता लेते जाएंगे। अगर तुम थोड़ा आगे तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे। तो नहीं, पर अगर यूक्रेन जो इन्होंने अभी लैंड ली है रशिया ने, अगर वो लेगा तो भी रशिया यूक्रेन नहीं, अभी तक तो वो कह रहे हैं कि अपना रशिया एक्चुअल यूक्रेन तो ये कह रहा है देखो भैया हम अपना लैंड जो तुमने लिए वापस ले रहे हैं। उसके लिए तो ओके, उसके लिए वो नहीं बोलता। उसको ये है कि अगर हमारी ओरिजिनल टेरिटरी, क्योंकि वो तो ये बोल रहे हैं ये भी हमारी हो गई है, मगर वो रशिया कह रहा है अगर हमारी ओरिजिनल टेरिटरी में कुछ होता है तब हम न्यूक्लियर बम यूज करेंगे। बाप रे, अब बहुत सीरियस सिचुएशन। अब चक्कर यही है कि काफी जो बॉर्डर में कंट्रीज हैं वो थोड़ी टेंस हो रही हैं, तो वो भेज रही हैं टैंक्स और वेपन्स भेज रही हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मगर सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। कलयुग है भैया, कलयुग। ना इधर से कोई मानता है ना उधर, खराब हो रही है सिचुएशन, बहुत सिचुएशन का। वो बोला भी तो है ना, हमारे जो इंडिया के वो बोल ही तो रहे थे कि एक्चुअल में सिचुएशन जो है बहुत खराब है। ग्राउंड सिचुएशन बोला था उन्होंने कि असलियत में बहुत खराब है, टेंस है। तो एनीवे फ्रेंड्स, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो इंडिया हर बार अब्सटेन ही करेगा, और करना भी चाहिए यार। क्या हम क्या उखाड़ लेंगे, हम क्या अपनी रिलेशनशिप परमानेंट मेंबर नहीं है, पहले बनाओ फिर करेंगे, फिर सोचेंगे किसको क्या, बखेड़े में क्यों पड़े, क्यों पड़े। ठीक बात है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।